It was strange because we felt so moved. We almost cried, and we didn't understand basically any single words, but we shared the feelings, the emotions, and we assist, and we were kind of painting what they heard. Be welcome here and learn how the people here celebrate, you know. And I was amazed by the way the people still have brotherhood together. That's something we don't really have somehow in our countries anymore, you know. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ कराक्रम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खदमत में। उर्दोकस बल्तुरु ग्लेशियर से यहाँ पर ये बुनियादी तौर पर ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो नहीं, लेकिन टूरिस्ट का एक रेस्ट प्लेस है। यहाँ पर आज चूँकि मुहर्रम 10वां मुहर्रम है, पूरी दुनिया में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अक़ीदत का इज़हार करने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर जलसे जुलूस का इनेकाद किया जाता है। और यहाँ पर भी जो लोग आए थे, जो मज़दूर थे, जो पोर्टर थे, जो गाइड थे, जो किचन स्टाफ थे, न सिर्फ वो किचन स्टाफ बल्कि वो गैर मुल्की सयाह जिनका मज़हब मुस्लिम भी नहीं है, इस्लाम उनका मज़हब नहीं है, उन सब ने इस प्रोसेशन को देखा, इस जुलूस को देखा। यहाँ पर जो नोहा ख्वानी की गई, मरसे ख्वानी की गई का अपनी याददाश्त का हिस्सा बना रहे थे कि इस दिन यहाँ पर यहाँ के मुसलमानों ने इस दिन को किस तरीके से ये लोग अपनी अक़ीदत व इज़हार कर रहे हैं। इसी हवाले से हमने चंद टूरिस्टों से बात की तो उन्होंने भी कहा कि कोई कि हमें इस प्रोसेशन में यहाँ पे जो नोहा ख्वानी की गई, जो मरसे ख्वानी की गई, उसके हमें इस तरीके से समझ नहीं आई, लेकिन वो एक किस्म की उनकी वो कह रहे हैं कि उनकी फीलिंग जो है यकसर बदल गई। उन्होंने इस खुशी का भी इज़हार किया कि यहाँ पर किसी किस्म की सख्ती के बग़ैर लोग अगर वेलकमिंग कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी मज़हबी इबादत जो है बड़े जोश व खरोश और अक़ीदत व एहतराम के साथ मना रहे हैं। इस पर उन्होंने खुशी का इज़हार किया। I'm Irene Maturi from the Italian K2 base camp expedition, and we had the great honor to assist to this procession. And it has been very moving for us. Never seen anything like that in our life. And it has been a real chance to feel in this environment, in this culture, and we're really grateful for this chance and occasion. Thank you very much indeed. While something reciting here, so what was your feeling at the time? It was strange because we felt so moved. We almost cried, and we didn't understand basically any single words, but we shared the feelings, the emotions, and we assist, and we were kind of painting what they heard it mean, because we do have something similar in our house, but it's such remote, ancient reef for our own European culture that we never seen it again in the few days, in the few past years. Thank you very much. Thank you very much indeed. I'm Harold from France, and I'm kind of very proud to assist to this ceremony and had the chance to be welcome here and learn how the people here celebrate, you know. And I was amazed by the way the people still have brotherhood together. That's something we don't really have somehow in our countries anymore, you know. Yeah. So welcome, thank you for welcoming us and give us the chance to assist to and understand, assist to your culture and know how you celebrate. How was your feeling at the time during the reciting? I felt a lot of emotions. I felt it was really beautiful, the voices all together, and somehow I felt that it caused some feelings that I can share, you know, even if I don't believe in the same things. जहाँ पर गैर मुल्की सयाहों ने जो लोगों की रिस्पेक्ट का, एहतराम का, और लोगों ने जो जिस तरीके से यहाँ पर जुलूस में जो लोगों ने जुलूस को मुनक़िद किया, उस पर उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन का इज़हार किया। वहाँ पर जो नोहा ख़ान हज़रात हैं, उन्होंने आज के दिन अपने घरों में रहने के बजाय मज़दूरी करते हुए यहाँ पर
जो है मरसिया ख्वानी करने का इनको मौका मिलना, ये अपने लिए सादत और अकीदत सादत का मौका इन्होंने तस्वुर किया। नौजवान अकबर बाबांगा Yanlaştık bağlanıp geliyor babana özgür katanı Yanlaştık bağlanıp geliyor Migiyot lansestose Yangin maya baz baseldo Hey tonayot ordama palasta Ahmad mo tarir totom Jawan akbar man jawan akbar man jawan याद करते हैं हमें ये प्रदेश में कि यह एहसास हो गया ये अंग्रेज़ भी यहाँ पर आए हुए हैं बाहर से भी कुछ मेहमान आए हुए हैं इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम अंग्रेज़ों ने भी शिरकत की हम ये फील करते हैं यहाँ पर कि हमने ये डिसाइड किया उनको भी ये पैगाम पहुँचाया जिनको इल्म नहीं है इस फील्ड में नवाखानी में सिंधनी में इनको कोई नहीं पता है इनको भी इस फील्ड में इस टूर में इनको भी पता चल गया हम शुक्रिया अदा करते हैं इन सब का और आपका भी। तो आपको बुनियादी तौर पर क्या लगा कि आप नहीं समझ रहे थे कि आज के दिन आपको घर में होना चाहिए था जहाँ पे मैं किसी मस्जिद में मरसिया पढ़ रहे होते, किसी इमाम बारगाह में नोहा पढ़ रहे होते या जुलूस गुजर रहे होते, वहाँ पे आप नोहा ख्वानी कर रहे होते। बिल्कुल आपकी बात सही है, ये नसीब की बात है यहाँ पे हम पहुँचा। ऐसे जगहों पे मजलिस करना हर किसी को नसीब नहीं होता है। ये तो एक मौत के सफ़र है, ये आपको भी मालूम है कि टू साइड पे हम मौला का भी शुक्र करते हैं, मौला का अल्लाह का भी हम शुक्र करते हैं। हमें ये नसीब हो गया इस टूर में पयू में और नीचे खोबुस्ते में और ज़क्स में हमने खाने भी की, मरसिया खाने भी की। हम तमाम तबरुक जिसने तबरुक इंतज़ाम किया उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हवाई साहब हम इनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि हम पिछले 2 सालों से इसी टाइम पे यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं तो बाल बच्चे को पढ़ने के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। तो बदनसीबी की वजह से हमें तो अपने गाँव में और स्कार्दो जैसा शहर में तो ये नहीं कर सका। तो क्या करूँ, बस बाल बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पे आना पड़ा। तो अल्लाह का अलग अलग शुक्र है। तो इस अजीम दिन पे हमारे लिए यहाँ पे मौका मिला, इसीलिए मैं अल्लाह ताला का अलग अलग शुक्र करता हूँ फिदा भाई। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमें आज का दिन यहाँ पर इस जगह पर जहाँ पे आम लोग नहीं आते हैं उधर मौका मिलना हमारे लिए नसीब की बात है, अकीदत की बात है। आप कह रहे हैं कि बदनसीबी है, तो आपने अपने आप को उन बदनसीबों की फ़हरिस्त में अपने आप को क्यों शामिल किया? जी वो इसलिए फिदा भाई क्योंकि हमारे वहाँ पे तो आपको पता है किस्सा ख़वानी होते हैं, सदका खैरात बहुत से ज़्यादा होते हैं। तो हम यहाँ पे जो कुकिंग करते हैं, गाइड करते हैं, तो अक्सर गोरों के साथ आते हैं। तो हमें इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता है जितना हमें वो सीना जनी करना कम तर मिलता है। सिर्फ 1-2 मरसिया और 1-2 नोहे के अलावा हमें कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए हम जो वाक़या करबला है आप देखें कितना ये अजीम दिन है, कितना ये बड़ा दिन है। इस बड़े दिन पे बस इस माउंटेन पे बस हमारे लिए यही मौका मिला, बस अल्लाह ताला का अलग अलग शुक्र है। इंशाल्लाह हम जब स्कूल से निकाला है उसी दिन से एक मरसिया और एक नोहा हमने पढ़ के यहाँ तक पहुँचा है। तो इंशाल्लाह आज से यहाँ से हंडोर कराज करके हम हुशे तक जाएंगे, तो इमाम का ये ताज़ियत हम करते जाएंगे फिदा भाई। आज मैंने यहाँ पे आके ज़िक्र मौला हुसैन करने की तौफीक हासिल हुई हमें। तो यहाँ आके हमें ये एहसास हुआ कि हमें करबला की याद भी आई। करबला में भी यानी कि मज़लूम करबला सफ़र पे थे, तो सफ़र के दौरान मौला को यानी कि शहीद किया गया। उस दिन का हमें मुकम्मल एहसास हो गई और ये हमें शर्फ है कि हम शियान हैदर करार हैं और पहले आशिकान मज़लूम जवान महसूस किया या अपने आप को खुशकिस्मत लोगों की फहरिस्त में पाया?
सबसे पहले बात तो यह है कि मैं खुश नसीब हूँ। ज़िक्र इमाम हुसैन करना यानी कि इसके लिए कोई मरगा या कोई मस्जिद या कोई जुलूस की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी बैठे ज़िक्र आल मोहम्मद करना यानी कि हमारे ऊपर फ़र्ज़ बनती है। और यहाँ पे इस जगह पे जो है आलिम दीन कम आते हैं, तो कम तादाद पे यानी कि जहाँ पे आप अकेला भी रहे तब भी आप ज़िक्र आल मोहम्मद कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जब तक हमारी सफ़र है हम ज़िक्र आल मोहम्मद करते रहेंगे और पैगाम पहुँचाते रहेंगे ज़िक्र आल मोहम्मद। उनका ये मानना है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो की शहादत है, उनका जो मातम है उस को मनाने के लिए कोई मस्जिद, कोई बाज़ार, कोई जलसा, कोई जुलूस नहीं, बल्कि वो जहाँ जहाँ पर उन्हें मौका मिलता है, जहाँ जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ जहाँ पे भी उन्हें मौका मिलता है, तो वो अपनी अक़ीदतों के फूल निशावर करते हैं और वो यही अक़ीदत व एहतराम का फूल निशावर करते रहेंगे। जी, इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।